Hello everyone, my name is Snigdha Gupta and I'll be taking your two sections, that is maths and reasoning. Alright, ये दोनों टॉपिक्स आप सब समझ सकते हो that they are very related and maths, reasoning दोनों completely common sense based होते हैं. And when we'll start studying, you will realize that actually में दोनों में सिर्फ common sense लगती है. Like when we talk of maths, there will be no formulas, nothing. Same goes for reasoning. And in a similar manner, we are going to study both the subjects. All right. So before we start with any topic, I would firstly like to introduce you to what kind of questions, what kind of topics you're going to get. So सबसे पहले, let's have a look at the course sheet. So this is the complete course sheet for DULB exam and it consists of your topics maths and reasoning. देखो मैथ्स तो शायद एक ऐसी नॉट शायद डेफिनेटली एक ऐसी चीज़ है जो कि हम सब ने कभी ना कभी पढ़ी है स्कूल में 10th तक, राइट. रीजनिंग इज गोइंग टू बी समथिंग एब्सोल्युटली न्यू फॉर यू. ओके, तो फिलहाल मैं आपको आई एम जस्ट गिविंग यू वन लुक कि किस तरह के टॉपिक्स आएंगे और जब हम उनको पढ़ेंगे तब हम उनको सही से समझ पाएंगे. ठीक है, नाउ लेट्स सी. दिस कॉलम इज फॉर रीजनिंग, दिस कॉलम इज फॉर मैथ्स. रीजनिंग में आपके टॉपिक्स हैं, यू कैन सी ये ऑल दीज and 1 से लेके 10 तक. Then there is going to be a class for all the previous year questions. Sometimes कुछ ऐसे questions होते हैं जो कि किसी टॉपिक पे फॉलो नहीं करते, रैंडमली कहीं से भी आ जाते हैं, तो उन सबको कंसोलिडेट करके एक क्लास हम लेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की. एंड उसके अलावा वी आर ऑल्सो गोइंग टू डील विद सम मिसलेनियस टॉपिक्स. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट ये जो 10 टॉपिक्स हैं, सी ऑल ऑफ देम आर इम्पॉर्टेंट. हाउएवर कुछ टॉपिक्स इसमें ऐसे हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंस के हैं. सो आई एम गोइंग टू मार्क द टॉपिक्स विच आर ऑफ मोर इम्पॉर्टेंस. सो कोडिंग टू कोडिंग, येस इम्पॉर्टेंट. नंबर सीरीज, येस इम्पॉर्टेंट. वर्ड एनालिसिस एंड क्लासिफिकेशन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यू. देन या डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, ब्लड रिलेशन, ये सारे इंपॉर्टेंट हैं. पजल्स आई वुड से less important. Syllogism very important. ये भी हो गया less important. This is also important. This is less important. ये तो सारा previous years and miscellaneous है. Obviously we're going to do that also. All right. Now if we see maths हम 100% जैसे reasoning करेंगे without any formulas, common sense, इसी तरह से हम maths करेंगे. And जो maths आपके एग्जाम में आती है, that is very basic arithmetic topics, जैसे कि profit and loss, time and work, time, speed and distance, very simple topics. Okay, so the first 6 topics, they are the only ones that are important. and आपके जितने भी questions आएंगे इन 6 topics से ही आएंगे. but by chance sometimes I've seen by chance कभी एक आधा question किसी और topic में से आ जाता है. so for that we have to do some more topics. These are of course of lesser importance. All right, so this is your course sheet. Now how are we going to study? Because when you come here for the class, I never ever expect कि आपको कुछ भी आता हो. and अगर आपने by chance कभी कोई topic पास में पढ़ा हुआ भी है, you have to completely forget about it. ठीक है, आपने बिल्कुल भी अपने कोई past उससे related information नहीं लेके आनी. Come in a class afresh. I'm going to start with every topic in a very simple manner. तो पहले हम topic को basics उसके समझेंगे. I'm going to teach you some concepts about it. Then we'll start with question solving. Well, whatever that is going to come in your exam will be from what I teach you. All right. ठीक है. We'll start with a topic today. मैंने आपको basics थोड़ा सा बता दिया. We'll start with our first topic today, that is direction and distance. All right. So let us start with our first class, maths and reasoning. हमारा आज का टॉपिक है direction and distance.
नाउ सबसे पहले इसकी इंपॉर्टेंस, you definitely get a question from this in your DU LLB. Next thing, अब टॉपिक आपने सुन लिया, अब किस तरह के क्वेश्चंस इस टॉपिक से आते हैं, लेट्स सी दैट. नाउ दिस इज अ टॉपिक ऑफ रीजनिंग एंड यू विल गेट अ क्वेश्चन वेयर दे विल से दैट एक मैन है, वो पहले गया 10 किलोमीटर नॉर्थ, फिर उसने राइट टर्न लिया 20 किलोमीटर गया, फिर वो नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में गया 15 किलोमीटर्स, फिर वो लेफ्ट टर्न लेके व्हाटएवर 10 किलोमीटर्स और गया. फाइनली वो किस डायरेक्शन में वॉक कर रहा है, या फाइनली वो कितने डिस्टेंस पे पहुंच गया है. So questions related to direction and distance. Okay? And I'll show you one thing, that if you'll follow the class properly, कोई भी क्वेश्चन आपका आएगा डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का, you will be able to solve it very easily. Alright? And already आपको बता चुकी हूँ that I do not expect कि आपको कुछ भी आता होगा. ठीक है? So let's start our topic now, direction and distance. हर टॉपिक में सबसे पहले आपको कुछ कंसेप्ट समझने पड़ेंगे, some basic things about every topic. All right. So the first thing that we need to know about direction and distance is that there are four major directions: N, E, S, W. This is north, this is east, this is south and this is west. So हमारी चार मेजर डायरेक्शंस होती हैं, N, E, S, W, clockwise. N, E, S, W, clockwise. मतलब कि ये नॉर्थ है, ये ईस्ट, ये साउथ एंड ये वेस्ट. अब मैंने ये क्लॉकवाइज इसलिए लिखा है कि डायरेक्शन वैसे फिक्स्ड है, ये हमेशा नॉर्थ है, ये ईस्ट है, ये साउथ है और ये वेस्ट है. बट समटाइम्स फॉर द सेक ऑफ क्वेश्चन कभी कभी ऐसा होता है कि एग्जामिनर हमें बोल देगा कि आपको इसको नॉर्थ मानना पड़ेगा. ऐसा पॉसिबल नहीं है, बट एग्जामिनर बोल देता है. तो इफ द एग्जामिनर सेज दैट दिस इज नॉर्थ, तो बाकी डायरेक्शंस भी उस हिसाब से चेंज हो जाएंगी. N, E, S, W. N, E, S and W. कभी किसी क्वेश्चन में if the examiner says that this you have to consider north, तो अगर ये N है तो E, S and W. ठीक है? तो हमारी चार मेजर डायरेक्शंस होती हैं, N, E, S, W clockwise. Please remember like this, N, E, S and W. तो ये हमारी चार डायरेक्शन. प्लीज राइट डाउन दिस मच. सो बेसिक चार हमारी डायरेक्शंस हो गई. नाउ इसी के अंदर चार डायरेक्शंस हमारी और होती हैं. दिस इज नॉर्थ ईस्ट, दिस इज साउथ ईस्ट, दिस इज साउथ वेस्ट एंड दिस इज नॉर्थ वेस्ट. ओके, सो देन दीज आर फोर मोर डायरेक्शन. तो बेसिक चार डायरेक्शन, उसके अंदर चार डायरेक्शन और. Now sometimes students ask me कि मैम इसको हम नॉर्थ ईस्ट क्यों बोलते हैं, हम इसको ईस्ट नॉर्थ क्यों नहीं बोल सकते. ऑफ कोर्स आप बोल सकते हो, आपकी मर्जी है. जनरल रूल एनी लिख दिया, उसकी जगह आप उसको ई एन लिख दो, डजंट मैटर. ऑलराइट, फाइन. तो ये थी हमारी फर्स्ट पार्ट. नाउ आई विल आस्क यू सम सिंपल क्वेश्चंस. आई एम जस्ट इरेजिंग दिस, ठीक है, बिकॉज दैट्स अंडरस्टूड. नाउ सपोज आई से दैट दिस इज ए, दिस इज बी. अब मैं आपसे पूछूं ए से बी कौन सी डायरेक्शन में? आई थिंक ऑल ऑफ अस कैन से नॉर्थ, राइट? आई से सी इज हियर, तो ए से सी कौन सी डायरेक्शन है? ऑल ऑफ अस कैन से दैट इज ईस्ट. आई से डी इज हियर, तो ए से डी कौन सी डायरेक्शन है? ऑल ऑफ अस कैन से दैट इज साउथ. ओके, तो ये बेसिक हमारी डायरेक्शन की बात थी. पहला कंसेप्ट N, E, S, W हमारी चार डायरेक्शंस हो गई. Now let's understand the second concept. Second thing, please write down. Directions are
always fixed. Directions are always fixed. Now इस बात का क्या मतलब है? Please understand. देखो, this point makes the entire topic very easy. Now try to understand this. Now, no matter मैं कहाँ खड़ी हूँ, no matter मैंने कहाँ से चलना शुरू करा या मैं कहाँ फेस करी हूँ, कुछ मैटर नहीं करेगा. Suppose I am here and अगर मैंने नॉर्थ जाना है, तो नॉर्थ कहाँ पे है? नॉर्थ का मतलब हम ऊपर की तरफ ही जाएंगे. तो इट विल नथिंग एल्स विल मैटर. आई एम हियर, अगर मैंने नॉर्थ जाना है तो मैं ऊपर की तरफ ही जाऊंगी. सेम वे, ईस्ट का मतलब राइट, वेस्ट का मतलब लेफ्ट एंड साउथ का मतलब नीचे की तरफ. अब मैं यहाँ पे हूँ. अब आपने ये नहीं सोचना कि मैम हमने कहाँ से शुरू करा, नहीं, नथिंग. यू आर एट दिस पॉइंट. नाउ आई से कि आपने यहाँ से ईस्ट जाना है. तो ईस्ट कहाँ होता है? ईस्ट इज टुवर्ड्स द राइट साइड. ईस्ट मतलब इस तरफ जाना. दैट मीन्स वी आर गोइंग टू गो हियर. ओके, नाउ यू आर हियर. नाउ फॉरगेट अबाउट ऑल दिस. आप बस अब इस पॉइंट पे हो. अब मैं आपको बोलूँ आपने साउथ जाना है. साउथ कहाँ होता है? नीचे की तरफ. दैट मीन्स नाउ यू विल वॉक लाइक दिस. तो आप यहाँ पे हो. अब मैं आपको बोलूँ कि यहाँ से आपने ईस्ट जाना है. आपने कुछ नहीं सोचना. ईस्ट कहाँ है? ईस्ट इज राइट साइड. नॉर्थ ऊपर, साउथ नीचे, ईस्ट ऑन द राइट, वेस्ट ऑन द लेफ्ट. सिंपल. अब मैं बोलूँ यहाँ से ईस्ट जाना है, तो ईस्ट मतलब आप इधर ही जाओगे. यहाँ से नॉर्थ जाना है, इधर जाओगे. ऐसे यहाँ से आपने जाना है वेस्ट. दैट मीन्स यू विल गो लाइक दिस. ठीक है. तो डायरेक्शन फिक्स्ड होती हैं एंड दिस इज व्हाट मेक्स द डायरेक्शन का टॉपिक वेरी सिंपल. दैट आपने किसी चीज़ की कोई केयर नहीं करनी होती. 4 हमारी डायरेक्शंस हैं, वो फिक्स्ड हैं. कोई कहीं भी बोलेगा नॉर्थ जाना है, साउथ जाना है, ईस्ट वेस्ट, वो फिक्स्ड है. आपने वहीं जाना है. फॉर एग्जाम्पल, आई विल गिव यू वन मोर स्मॉल एग्जाम्पल. सपोज आई हैव ट्रैवल्ड लाइक दिस. सपोज आई एम हियर. ओके, अब मुझे कोई बोलता है कि आपने ईस्ट जाना है. ईस्ट कहाँ जाऊंगी? ईस्ट फिक्स. ईस्ट मतलब वी आर गोइंग टू गो इन आर राइट साइड हियर. दैट मीन्स वी आर गोइंग टू वॉक लाइक दिस. ओके, सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू दैट यू डोंट हैव टू केयर अबाउट कि आपने कहाँ से शुरू करा, आपने कहाँ टर्न लिया. नहीं, हम किसी भी पॉइंट पे हैं तो वहाँ से नॉर्थ का मतलब ऊपर, साउथ का मतलब नीचे, ईस्ट का मतलब राइट एंड वेस्ट का मतलब लेफ्ट. ओके, सो आई होप द सेकंड पॉइंट इज क्लियर टू यू. ऑलराइट, सो अभी तक थिंग्स बिकम वेरी इजी. नाउ प्रॉब्लम आती है जब इंस्टेड ऑफ डायरेक्शन द एग्जामिनर सेज कि आपने राइट टर्न लिया या आपने लेफ्ट टर्न लिया. आप टर्न लेके गए. अगर तो हमें बोलेंगे कि आप नॉर्थ गए या ईस्ट गए या साउथ गए तो बहुत ईजी, हमें पता है, फिक्स्ड है. बट टर्न्स जब लेते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा हमें दिक्कत आ जाती है. तो लेट्स अंडरस्टैंड अबाउट टर्न्स. तो आप प्लीज लिखो द नेक्स्ट पॉइंट. We'll understand about turns now. So the first point that you need to know about turns is that turns are always of 90 degree. Please write down. Turns are always of 90 degree. Suppose I'm here. मैं गई 10 किलोमीटर नॉर्थ. ठीक है, मैंने लिख दिया 10 किलोमीटर्स में गई नॉर्थ. नॉर्थ मतलब ऊपर. अब अगर यहाँ से मैं आपको बोलूँ कि आपने ईस्ट जाना है या आपने वेस्ट जाना है या फर्दर नॉर्थ जाना है या साउथ, वो सब आप कर सकते. ठीक है. बट इफ आई से आपने सपोज राइट टर्न लिया, सो दिस हैज टू बी 90 डिग्री. सपोज आपने फिर से राइट टर्न लिया, दिस ऑल्सो हैज टू बी 90 डिग्री. सपोज आपने अब लेफ्ट टर्न लिया, दिस ऑल्सो हैज टू बी 90 डिग्री. तो आप किस तरफ टर्न ले रहे हो वो अभी पॉइंट नहीं है. पॉइंट है कि आप जब भी टर्न लेते हो यू ऑलवेज टर्न 90 डिग्री. बीच में कोई टर्न नहीं होता. ठीक है. So turns are always 90 degree. All right. I hope this point is also clear to you. Now let us go to the last point, the last concept you need to know, the last and the most important concept. Once we are done with that concept,
We can solve every question of directions. Okay, we'll see that. As we'll start solving, you will realize that. Now let's go to the last point. Please write down. पहले लिखो फिर मैं आपको explain करूंगी. Right turn means turning clockwise. Left turn means turning anti-clockwise. Very important. Right turn का मतलब होता है clockwise turn करना. Left turn का मतलब होता है, देखो, this is the only place जहाँ पे हमें शायद थोड़ा error आ सकता है, इसलिए आप इसको प्लीज ध्यान से समझना. Because once you'll understand, all your questions will be correct. Okay. Now suppose I'm standing here. I walk 10 kilometer north. ठीक है, मैं गई 10 किलोमीटर नॉर्थ. नाउ जहां पे भी आप रुको वहां पे आप एक एरो बना लो लाइक, ठीक है. नाउ सपोज द एग्जामिनर सेज कि यहां से आपने राइट टर्न लेना है. तो एक तो तरीका होता है हम अपने हैंड यूज करके देख सकते हैं, बट दैट लीड्स टू एरर्स अ लॉट ऑफ टाइम्स, सो दैट इज नॉट अ फुल प्रूफ वे. So let us see the other way that is going to be very useful. Suppose the examiner says कि यहाँ से आपने right turn लेना है, तो आप assume करो that this is a hand of a clock. Okay. And अगर ये hand of clock है तो इस टाइम clock में क्या टाइम हो रहा है? 12 बज रहे हैं, राइट? तो अगर हमने अभी 12 बज रहे हैं, अगर हम राइट लेते हैं तो हम नॉर्मल जैसे क्लॉक चलती है उस डायरेक्शन में बढ़ेंगे. सो 12 के बाद आगे क्या बजेगा? 12 से हम अगर आगे की तरफ बढ़ेंगे तो 12 के बाद अब 3 की तरफ जाएंगे, राइट? दैट मीन्स वी हैव टू टर्न इन दिस डायरेक्शन. एंड अगर एग्जामिनर बोलता कि हमने यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है, तो अभी 12 बज रहे हैं, हमें लेफ्ट टर्न लेना है यानी हमें क्लॉक उल्टी चलानी है. तो अब हम 12 के बाद 1 2 3 की तरफ नहीं जाएंगे, 12 के बाद हम इस तरफ जाएंगे. दैट मीन्स वी आर गोइंग टू टर्न इन दिस डायरेक्शन. 11 की तरफ जाएंगे हम या 9 की तरफ जाएंगे, ठीक है. तो ट्राई जस्ट अंडरस्टैंड. सपोज आई एम हियर, आई वॉक 10 किलोमीटर नॉर्थ. एग्जामिनर ने बोला यहाँ से आप राइट टर्न लो. 12 बज रहे हैं यानी मैं 1 बजे की तरफ जाऊंगी इस तरफ. दैट मीन्स आई एम गोइंग टू वॉक इन दिस डायरेक्शन एंड हियर एम आई. अब आप इसको भूल जाओ. नाउ प्लीज टेल मी, अब क्लॉक में क्या टाइम हो रहा है? 3 बज रहे हैं, राइट? अब अगर मैं आपको फिर से बोलूं कि यहाँ से आपने फिर से राइट टर्न लेना है यानी आपने नॉर्मली क्लॉक चलानी है, 3 के बाद क्या आता है? 4 बजे. तो 4 बजे के लिए हम इसको नीचे की तरफ लेके जाएंगे या ऊपर की तरफ लेके जाएंगे? ऑब्वियसली नीचे की तरफ लेके जाएंगे. दैट मीन्स नाउ वी हैव टू वॉक इन दिस डायरेक्शन. आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग लिटिल बिट. ओके. नाउ वी आर हियर. प्लीज टेल मी क्लॉक में क्या टाइम हो रहा है? 6 बज रहे हैं. अब मैं आपको बोलूं कि अब आपने यहां से लेफ्ट टर्न लेना है. लेफ्ट मतलब हमने क्लॉक उल्टी चलानी है. सीधी सी बात है. राइट मतलब सीधा होता है, लेफ्ट मतलब उल्टा होता है. तो हमने अगर लेफ्ट टर्न लेना है यानी हमें क्लॉक उल्टी चलानी है, तो 6 के बाद क्या हम 7 की तरफ जाएंगे या 5 की तरफ? 5 की तरफ, राइट? दैट मीन्स वी हैव टू टर्न इन दिस डायरेक्शन. I hope you understood this now. Okay. And as and when we'll do 2-3 questions, you will get a hang of it and you will find this very easy. All right. So I'll just give you one more example. Please see. Suppose I am walking in this direction. आप लोग प्लीज बताओ क्लॉक में क्या टाइम हो रहा है? 9 बज रहे हैं.
नाउ आई से कि आपने यहाँ से लेफ्ट टर्न लेना है। लेफ्ट मतलब उल्टा। तो 9 के बाद आप 10 पे जाओगे या 8 पे जाओगे? उल्टी चलानी है क्लॉक, तो हम किस पे जाएँगे? 8 पे। दैट मीन्स ऊपर जाएँगे या नीचे जाएँगे? नीचे। वेरी ईज़ी। अब 6 बज रहे हैं। अब मैं बोलूँ आपने राइट टर्न लेना है। 6 के बाद कहाँ जाओगे नॉर्मली? 6 के बाद 7, 7 के लिए जाएँगे यानी हम इस तरफ जाएँगे। दैट मीन्स वी आर गोइंग टू वॉक इन दिस डायरेक्शन। ओके? So these are all the concepts of direction and distance. And let me just quickly brief you. First thing we saw, basic 4 directions होती हैं N, E, S, W, clockwise. Then I told you कि directions fixed हैं. आपने कभी नहीं सोचना कि हम कहाँ फेस कर रहे हैं, हम कहाँ से आए हैं, नहीं। किसी ने नॉर्थ जाना है तो ऊपर ही जाएगा, साउथ जाना है नीचे ही जाएगा, ईस्ट जाना है तो राइट जाएगा, वेस्ट जाना है तो लेफ्ट जाएगा, ठीक है? देन आई टोल्ड यू दैट जब भी हम टर्न लेते हैं, टर्न्स हमेशा 90 डिग्री के होते हैं। एंड द लास्ट थिंग आई टोल्ड यू, राइट टर्न मतलब टर्निंग क्लॉकवाइज, लेफ्ट टर्न मीन्स टर्निंग एंटी क्लॉकवाइज। ओके, सो आई होप ऑल ऑफ यू हैव understood यहाँ तक सब कुछ. If anybody has a doubt, you can always post it in the comments. I'll read and I'll get back to you. All right, reasoning and maths. It's not theory, it is only and only practice. So let's start with some questions now. So दो questions मैं आपको dictate करूंगी, उसके बाद we'll solve the assignments because then it is a quicker way. So all of you, please write a simple question. Write down a question. A man walked 10 kilometers in north direction. Then he turned right and walked 5 kilometers. Again, he turned right and walked 10 kilometers. Okay, this is the question. A man walked 10 kilometers in north direction. Then he turned right and walked 5 kilometers. Again, he turned right and walked 10 kilometers. Question मैं आपको दूंगी, इसके आगे पहले आप सब डायग्राम बनाओ. Try and make the diagram. Alright, let's see. देखो आप जहां से भी शुरू करो, make a small cross so that you know this is the starting point. Okay, so a man walked 10 kilometers in the north direction like this. Please always write the measurements. Then he turned right. I think all of us can understand right का इसमें क्या मतलब होगा. 12 बज रहे हैं तो हमें एक की तरफ जाना है. And he walked 5 kilometers. यहां तक मेरा डायग्राम सही है? देखो वैसे तो सही है, बट थोड़ा हमें ये चीज देखनी पड़ेगी कि जो हम डायग्राम बनाए थोड़ा सा प्रोपोर्शनल बनाए. अगर मैं इतना बड़ा 10 बना रही हूँ तो ऑलमोस्ट सेम साइज का 5 किलोमीटर बनाऊंगी. सो नो, नॉट राइट. आई एम नॉट सेइंग आप बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट्स करके बनाओ, बट थोड़ा प्रोपोर्शनेट बनाओ. तो अगर इतना 10 है तो ऑलमोस्ट आप हाफ 5 ड्रॉ करो. ऑलराइट, दिस इज 5 किलोमीटर. अगेन ही टर्न राइट and walked 10 kilometers. Alright, I think आप सबने ये डायग्राम बनाया होगा. Now all of you, please write the first question. Which direction is he facing now? Which direction is he facing now? What is your answer? The answer is south.
आपको कोई मतलब नहीं कि कहाँ हमने शुरू करा, ये कहाँ गया, नहीं। आपसे सिंपली एग्जामिनर पूछ रहा है कि अब वो कहाँ फेस कर रहा है। तो वेयर इज ही फेसिंग नाउ? ही इज फेसिंग द साउथ डायरेक्शन। आपने सिर्फ इतना सा देखना है, कहाँ फेस कर रहा है? साउथ। वेरी सिंपल। ऑलराइट, इसी का कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन लिखो। सेकंड क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन is he now from the starting point? In which direction is he now from the starting point? Okay, what is your answer? The correct answer is east. Now let's see, very easy. देखो ये starting point था, अब वो फाइनली यहाँ पे आ गया। आपको इन सब से कोई मतलब नहीं है, आपको सिर्फ इन 2 पॉइंट्स के बीच का रिलेशन पूछ रहे हैं। दे आर आस्किंग यू स्टार्टिंग पॉइंट से अब वो किस डायरेक्शन में आ गया है। So which direction is this? You're going to say this is east direction. Simple. So आपका आंसर हो गया east. Now please write down the third question. In which direction is the starting point from the final position? In which direction is the starting point from the final position? I think all of you know the answer. Final point से starting point कौन सी डायरेक्शन में है? आपका आंसर हो जाएगा वेस्ट, राइट? बहुत इजी। ओके, नाउ द फाइनल क्वेश्चन, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन स्टार्टिंग एंड फाइनल position? What is the distance between starting and final position? This also I think all of you must have answered already, but let me explain it to you. See, जब भी वो आपसे distance पूछते हैं, they are always asking you the shortest distance. आपने distance बताना है इन दोनों points के बीच का जो shortest possible है. So you don't have to think that ma'am 10 plus 5 plus 10 25 kilometers. No, आपने हमेशा direct distance बताना है. अब ये टर्न्स थे 90 डिग्री, रेक्टेंगल बन गया। अगर ये 5 है तो ऑब्वियसली ये भी 5 किलोमीटर होगा। वेरी इजी। सो आई होप ऑल ऑफ अस हैव अंडरस्टूड क्वेश्चन टिल हियर। नाउ लेट मी टेल यू वन थिंग। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बट हमारे अलग अलग आंसर्स आए। कभी हमारा आंसर आया नॉर्थ, कभी हमारा आंसर आया ईस्ट, कभी हमारा आंसर आया वेस्ट। सो डायग्राम बनाना ईजी है, क्वेश्चन समझना ईजी होता है, बट प्रॉब्लम आती है जब हम क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते। तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल कि कहाँ से कहाँ का रिलेशन आपसे पूछा जा रहा है, कि स्टार्टिंग से फाइनल या फाइनल से स्टार्टिंग या किस डायरेक्शन में जा रहे हैं। प्लीज बी केयरफुल अबाउट दैट। ऑलराइट, सो आई एम होपिंग यहाँ तक एवरीवन इज क्लियर। नाउ प्लीज लेट्स डू जस्ट वन मोर क्वेश्चन लाइक दिस। आई ऑनेस्टली डू नॉट लाइक कि मैं बहुत ज़्यादा अपने स्टूडेंट्स को लिखवाऊँ। आई प्रेफर कि आप लोग क्विकली करो। सो आई एम गोइंग टू गिव यू द असाइनमेंट, ओके? बट स्टार्टिंग है, एक दो क्वेश्चन मैं आपको लिखवा सकती हूँ। So please, all of you, write the next question. A man walked 4 kilometers in east direction. A man walked 4 kilometers in east
direction. Then he turned left and walked 3 kilometers. 3 kilometers. A man walked 4 kilometers in each direction. Then he turned left and walked 3 kilometers. Diagram बना लो. In which direction is he now from the starting point? If you've got the answer, very good. देखो ये starting point है. यहाँ पे हम आ गए हैं. So they are asking that starting point से हम किस direction में आ गए हैं? Which direction is this? This is northeast. Very good. ठीक है, easy. Now, please write down another question. In which direction is the starting point from his final position? In which direction is the starting point from his final position? The answer, ये है final point. Final point से starting point किस direction में? From the final point. Where is the starting point? Which direction is this? This is southwest. Okay? Very simple, right? Now, please write the last question. What is the distance between starting and final position? What is the distance between starting and the final position? All right, so if you've got the answer, very good. If you haven't, please see. देखो, इससे पहले क्वेश्चन में हमारे लिए डिस्टेंस निकालना बहुत इजी था बिकॉज वो एक रेक्टेंगल फॉर्म हो रहा था. तो 5 and 5 हमने पिक कर लिया, बट इस केस में रेक्टेंगल फॉर्म नहीं हो रहा. तो अब आप ये नहीं कर सकते कि मैम अब इसमें हम कैसे निकाले, तो आप आंसर बोल दो 7. नो, 7 इज नॉट द करेक्ट आंसर. आपने हमेशा जब भी डिस्टेंस निकालना होता है, दैट ऑलवेज हैज टू बी द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, द डायरेक्ट डिस्टेंस. ओके, बट इन दिस केस अगर आपने आंसर निकालना है तो आप ऐसे डायरेक्टली नहीं निकाल सकते. यू विल हैव टू यूज पाइथागोरस थ्योरम. नाउ प्लीज डोंट से कि मैम ये रीजनिंग में मैथ्स क्यों आ गया. इट्स वेरी सिंपल. पाइथागोरस इज वन थिंग जो कि बचपन से 100 बारी हम सब ने पढ़ा होगा और आपको नहीं भी याद. एज आई टोल्ड यू, आई डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग फ्रॉम यू. आई एम गोइंग टू टीच यू अगेन. ओके, सो जस्ट हैव पेशेंस. 2 minutes आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट टू यू. And you will see that in probably every question you will get in your exam direction का आपको हर question में Pythagoras use करना ही पड़ेगा. Okay, एक दो question आएंगे, you will have to use it. Now please let's see what was the Pythagoras theorem. It said that अगर एक right angle triangle है तो ये base है, ये perpendicular है और जो longest side होती है that is the hypotenuse. याद आया ऐसा कुछ होता है? And it says that hypotenuse square is base square plus perpendicular square. So हमारा base कितना है? Perpendicular कितना है? That is hypotenuse square. 16 plus 9, 25. Hypotenuse हो गया 5 किलोमीटर. ओके, सो सिंपल सा रूल है. जो भी बेस स्क्वायर है, जो भी परपेंडिकुलर है, उसको आपने ऐड कर दिया. सो यू विल फाइंड आउट हाइपोटेन्यूज एंड यू विल सी दैट जो भी अच्छे डायरेक्शन का क्वेश्चन फॉर्म होगा उसमें कहीं ना कहीं आपको इसको यूज करना पड़ेगा. ओके, सो आई होप यहाँ तक एवरीबडी इज क्लियर विद व्हाट वी हैव डन. तो हमारे क्वेश्चन हो गए. एंड इफ यू सी DULB,
So usually questions आपके कितने मैथ रीजनिंग के मिला के maybe you will get 15 questions and just follow what I'm saying, you will get all the questions correct. Okay, I think यहाँ तक सबको समझ आ गया. So let's start with our assignment. Okay, fine. So I want all of you to start solving the first 5 questions. जो आपका assignment है that has questions simple to difficult and previous year exams के सारे questions इसके अंदर हैं. So please all of you, I'm going to give you 3 to 4 minutes. Start solving the first 5 questions. All right, so I hope you've solved some questions. Okay, see, I may not be able to give you the exact time as you need for your solving the questions. If you've solved 5, very good. If you haven't solved, जितने भी आपने solve करे हैं वो बस correct होने चाहिए, ठीक है? क्योंकि initially when we start studying, हमारा criteria होता है accuracy.
स्पीड टाइम के साथ आ जाती है, but you don't have to worry about speed right now. What you have to think about is that we get the answers correctly. Okay, so now let us discuss the answers. First question का answer A, south. Second question, the correct answer is C, the third option, north. Third question, correct answer A, north. Fourth question, D, south. And the fifth question, correct answer is the third option, southeast. And I hope all of you have got the correct answers. Now let's go to the next 5 questions. They'll be simple distance based questions. Pehle simple questions karenge, then we'll go to the moderate questions. So we've gone way ahead. Wait 1 second. We have to do now these next 5 questions. These are simple distance based questions. Now the third question, देखो कोई भी क्वेश्चन आप सॉल्व करने लगो, सबसे पहले ना एक छोटा सा NESW ड्रॉ कर लो. ड्रॉ अ स्मॉल चार्ट ऑफ NESW जिससे आपको डायरेक्शंस क्लियर हो. ओके, इट सेज अ मैन स्टार्टेड वॉकिंग वेस्ट. कहीं से भी आपने शुरू करा. अ मैन स्टार्टेड वॉकिंग वेस्ट. देखो इस क्वेश्चन में आपको दे नहीं रखा कितना वॉक करा, तो आपकी मर्जी कितना भी ड्रॉ कर लो. अ मैन स्टार्टेड वॉकिंग वेस्ट, देन ही टर्न राइट. राइट मतलब अभी 9 बज रहे हैं, तो राइट के लिए कहाँ जाएगा? 10, 11, 12 की तरफ, यानी ऊपर की तरफ. कितना भी ले लो, आपकी मर्जी है. अगेन ही टर्न राइट, तो फिर यहाँ से राइट फिर ये हो जाएगा. फाइनली ही टर्न लेफ्ट. अब क्या टाइम हो रहा है इसमें? 3 बज रहे हैं. लेफ्ट लेंगे तो क्लॉक उल्टी चलाएंगे, यानी 3 के बाद हम 2 की तरफ जाएंगे. दैट मीन्स वी हैव टू वॉक इन दिस डायरेक्शन. So the answer is going to be north. I hope you understood where you've made an error. Okay. That was question number 3. A man on moped starts from a point and rides 4 kilometers south. Question number 4. कहीं से भी शुरू करो, क्रॉस कर दिया. A man walks 4 kilometers south. ठीक है जी. Then he turns left. 6 बज रहे हैं. लेफ्ट लेंगे तो 7 की तरफ जाएंगे या 5 की तरफ? 5 की तरफ. And he walks 2 kilometers. ठीक है. Again he turns right and walks 4 kilometers more. अब पता है क्या, जो गलतियां होती है ना हमारे छोटे छोटे एंगल, ये राइट टर्न लेफ्ट टर्न की वजह से ही होती है. अब 3 बज रहे हैं, हमने राइट टर्न लेना है, तो 3 के बाद 4 पे जाएंगे या 2 पे जाएंगे? 4 पे जाएंगे. तो 3 के बाद 4 पे जाने के लिए नीचे जाएंगे या ऊपर जाएंगे? नीचे जाएंगे, राइट. तो आपका आंसर हो गया. विच डायरेक्शन इज ही मूविंग? आंसर इज साउथ. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चंस. 6 to 10. Please solve 6 to 10.
So let's see how many questions you've done, 6 to 10. Okay. Again, since it's the first class, I'm telling you, it does not matter if you've done all 5 or not. जितने आपने करे उतने correct होने चाहिए. Okay. And never feel that any sort of anxiety that you'll miss out on any question. No. Now let's see the answers. Sixth ka answer is A, the first option, 3 kilometer. Seventh, the answer is the fourth option, 14 kilometer. Eighth, the correct answer is the third option, 4 kilometer. Let me just mark also. Sixth ka answer tha A. This was 14. And then eighth ka answer was this. Ninth, the correct answer is the second option, 7 kilometer. And 10th, the correct answer is the first option, 10 meters west. All right. All of you, please verify your answers. Question number 7. Let's see. Mohan traveled westward 5 kilometer. Okay. ठीक है, मैं आपको एक्सप्लेन तो करती हूँ, बट उससे पहले एक मैं छोटी सी बात बताती हूँ आपको. When you're doing maths and reasoning, एक कॉन्फिडेंस आप पहले दिन से अपने अंदर रखो दैट जब मेरे को बेसिक कंसेप्ट सारे आते हैं तो मैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ. आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प यू, बट यू नीड टू हैव दिस क्वेश्चन व्हाइल यू डूइंग मैथ्स एंड रीजनिंग, बिकॉज मैथ्स एंड रीजनिंग में अगर आपको बेसिक बातें पता है तो चाहे कितना ही डिफिकल्ट क्वेश्चन आप उसको सॉल्व कर सकते हो. दो दिस अप्रोच इज नॉट एप्लीकेबल फॉर टॉपिक्स लाइक जनरल स्टडीज. जितना आपने पढ़ा है उतना ही आपको पता है, आप गेस वर्क नहीं कर सकते. बट मैथ्स एंड रीजनिंग सॉल्व करते हुए ऑलवेज टेल योर सेल्फ दैट आई एम स्मार्ट इनफ कि अगर मुझे बेसिक बातें पता है तो मैं कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकता हूँ. राइट. नाउ लेट्स सी क्वेश्चन नंबर 7. मोहन ट्रैवल्ड वेस्टवर्ड्स 5 किलोमीटर. मोहन ने कहीं से भी शुरू करा एंड ही ट्रैवल्ड वेस्टवर्ड्स 5 किलोमीटर. Then he turned left and traveled 3 kilometers. Now just be careful about your rights and lefts. 9 बज रहे हैं, लेफ्ट टर्न यानी उल्टी क्लॉक चलाएंगे तो 9 के बाद हम 8 की तरफ जाएंगे. And he travels like this 3 kilometers. Now he turned right and travels 9 kilometers. 6 बज रहे हैं, right मतलब this direction and 9 kilometers. Again he turned right, then he traveled north 3 kilometers. तो बहुत easy हो गया, north 3 kilometers. So मोहन ने यहाँ से शुरू करा एंड मोहन यहाँ पे पहुँच गया. देखो दिस मच इज 9 पूरा, तो फिर ये डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा 9. तो इन दोनों पॉइंट्स के बीच का टोटल डिस्टेंस कितना हो गया 9 और 5. टोटल हमारा आंसर हो गया 14 kilometer. Okay. All right. So that means you've understood the basics of direction and distance. You've done up. See, इसमें ना ऑनेस्टली बताऊं बहुत ज़्यादा कुछ सिंपल मॉडरेट नहीं होता. आपको एक बार बेसिक्स आ गए ना, आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते. सिर्फ क्वेश्चन की आप ये यू कैन जस्ट इमेजिन दैट मे बी व्हाट कैन हैपन इज कि क्वेश्चन की लेंथ बढ़ जाए. इंस्टेड ऑफ इतना डायग्राम, थोड़ा इतना डायग्राम बने. दैट्स ऑल, नथिंग एल्स कैन डिफर. So I would like to say that I think we are done for today. We've done 10 questions here, 2 questions before. And this assignment has about, I think, 35 questions. So abhi to humne simple level kara hai. Then next we have to do anyway moderate level questions. You will find there is no difference in these questions. Slightly agar aapko halka fulka lage, maybe because the question has become a little bigger, maybe that's why. But otherwise, you'll find them also easy. So what I'm going to do is the questions ahead, you can solve on your own. Some moderate level questions, you can solve that. And most of the questions in this assignment are from your previous years. Okay, so you'll get a fair idea कि किस level के questions आपके आते हैं. So you can do all those and then you can continue with this. Now जिसको भी उसमें कोई doubt होगा, we'll do that. Don't ever do this that you keep it in cold storage कि हाँ चलो class attend कर ली, questions बाद में. नहीं, काम करो, उसको खत्म करो and you will be very sorted कि ठीक है direction and distance मेरा done हो चुका होगा. ठीक है. So I hope everyone understood today. Anybody who wants to have any sort of question, anything you want to ask, you can please just write in the comment section and I'll respond. That's it for today. I hope you understood both law classes and reasoning class, and I hope you enjoyed the classes today.
And with this, okay, bye bye. See you next time.